जय जिनेंद्र। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी राय में। इस प्रोग्राम में हम एक सोशल मुद्दे पर लोगों से जानते हैं उनकी राय। आज का हमारा विषय है नशे के ऊपर। दिन पर दिन नशे का सेवन बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम कुछ लोगों से उनकी राय जानेंगे और बात करेंगे नशे के ऊपर। सर, जो पंजाब में नशों का सेवन है या पूरी दुनिया में हम नशों का सेवन कह लें, उसकी वितरण कह लें, वो बहुत ही दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उसके ऊपर आपकी क्या राय है? ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ CMIE ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਲੋਕਡਾਊਨ 14 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਵਿਹਲਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਰਹੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਡ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਇੰਡਲਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਬਣੇ, ਧੰਦਾ ਚੱਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾਮ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 2014 'ਚ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 2017 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਿਰਫ ਇਸ ਡਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। सर, जो पंजाब सरकार है, मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार है, उसके मैनिफेस्टो में एक ही बात थी कि हम नशा छुड़वाएंगे और कुछ ही दिनों में पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे। इस पे आपकी क्या राय है? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੀ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ। ਵਿਦ ਨੇਮ ਦੱਸਣਗੇ, ਵਿਦ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਓ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। सर, क्यों सरकार नाकाम रहती है नशे छुड़ाने में, या पंजाब को या पूरे भारत को नशा मुक्त करने में? ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਸਕਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਇਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਸਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ।
पर जब एक व्यक्ति नशे की लत में लग जाता है उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ नशा ही करता है, तो मतलब अगर उसको कहीं से नशा मिल रहा है तो उसके लिए वो गॉडफादर हो जाता है। तो मतलब इस पे आप क्या कहना चाहोगे? ਦੇਖੋ ਮੈਮ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਹਲਾ ਰਹੂਗਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਕੇ, PhD ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸਕੇਪਿਜ਼ਮ ਲੱਭਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਮਾਈਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ, ਜੋ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਲਜ ਕਰਾਓ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆਪ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ की आप जिम्मेवार है, ये सानू आप जिम्मेवारी चकनी पैनी है। सरकार दे निर्भर रवांगे, सरकार दे डिपेंडेंट रवांगे तो बच्चों का भविख बहुत धुंधला है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम जसमन सिंह गिल, आई एम एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन। तो सर जो पंजाब में दिन पर दिन नशे बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब सेवन बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मैम ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹ ਭਰ ਭੁਰ ਕੇ ਐਨ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਵਾ? ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਆਏ ਦਿਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਨਸ਼ਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। मगर सर अगर बात करें नशे की तो पंजाब में कोई पिछले 4 सालों से नहीं नशा आया, उससे पहले भी नशा था। पंजाब में क्या पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में ही नशे का एक कारोबार चल रहा है, जो सिर्फ ये नहीं हम कह सकते कि कैप्टन सरकार की देखरेख में हुआ, पर उससे पहले भी था। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਮੀਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੇਨਸ਼ਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਆ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਨਾ ਜੀ, 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। सर जैसे पंजाब के ऊपर तो काफ़ी मूवीज़ भी बनी है, अगर किसी भी मूवी में नशे का दिखाना होता है तो मतलब नॉर्मली वो पंजाबियों को दिखाते हैं, जैसे उड़ता पंजाब जैसी मूवीज़ आई, मतलब कहीं ना कहीं पता तो सबको है पर इसके ऊपर काम कुछ नहीं हो रहा। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਗ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਮ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਥ नहीं ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। मतलब जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार है उनके मैनिफेस्टो में एक बहुत बड़ा मुद्दा था नशा। उन्होंने बोला था मैं पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा, और भी जो भी पार्टीज़ है वो यही बोलती है पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, पर पंजाब एक्चुअली में नशा मुक्त कब होगा, आपको क्या लगता है? मैम मैं ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ
ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਜੋ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। सर कोई एक छोटा सा मैसेज पंजाब के, इस देश के यूथ को जो नशे की लत में फंसा हुआ है, उसको हमारे चैनल के माध्यम से। ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਾਇਰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਨ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਨ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। अब हमारे साथ मौजूद है विजय दानव जी, आइए उनसे बात करते हैं। विजय जी स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। सर आपको क्या लगता है कि जो नशा है वो इतना क्यों बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन? देखो ये जो बात आपका क्वेश्चन है ना, बड़ा जायज़ है बहुत, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर बच्चे को बचपन में ही उसे अच्छे संस्कार दिए जाएं तो शायद मुझे नहीं लगता कि बच्चे जो हैं पथभ्रष्ट हो जाएंगे। उसकी मिसाल मैं आपके सामने, मैंने स्कूल में भी पढ़ा हूँ, कॉलेज में भी पढ़ा हूँ, और मेरे परिवार में मुझे संस्कार दिए गए और आगे मैंने अपने बच्चों को संस्कार दिए गए। हमारे परिवार में कोई भी जो बच्चा है वो कोई नशा नहीं करता। धार्मिक मनोवृत्ति के मेरा परिवार है, हम खुद धार्मिक मनोवृत्ति के हैं। तो इसके लिए मैं ये सोचता हूँ कि जितने हमारे टीचर्स हैं, जितने हमारे प्रोफेसर्स हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ाते हैं चाहे वो कॉलेज में पढ़ाते हैं, और उसके अलावा जितने भी धार्मिक हमारे प्रवचन करता है, जो प्रवचन करते हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जब अपने धर्म की जब बात करें तो जहाँ भगवान की बात करते हैं वहाँ वो एक और बात करें, वो करें संस्कारों की। क्योंकि जिन बच्चों में संस्कार पैदा कर दोगे आप, वो बच्चे पथभ्रष्ट नहीं होंगे। तो सर क्या कारण मानते हो कि जो एक बच्चा है वो नशे की लत में लग जाता है, उसको इतनी लत लग जाती है कि उसको नशे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता? वो मैं यही कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा करो, उसे ये बताओ, महापुरुषों की बातें बताओ, शहीदों की बातें बताओ, उनमें संस्कार पैदा करो। उनका दिमाग जो है ना, बचपन में जो आप तैयार कर दोगे जैसा बच्चा, वो बचपन में पहले आपने पुराने समय में आपने देखा गुरुकुल होते थे। गुरुकुल में बच्चों को भेजा इसलिए जाता था कि वो बाहर की दुनिया जो है ना उससे हटके वो उस दुनिया में जाएं जहाँ उनमें अच्छे संस्कार पैदा करने वाले हमारे गुरु जो वो पैदा हों। तो ये सबसे बड़ी जो बात है, वो हमारे घर में हमारी माँ सबसे पहली गुरु वो होती है। अगर वो अपने बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा कर दें तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा जो है नशे में ग्रस्त हो जाएगा, बच्चा गंदी सोसाइटी में चला जाएगा, क्योंकि उसके संस्कार उसे वो करने ही नहीं देंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले माँ अपने बच्चों में संस्कार पैदा करे, उसके बाद स्कूल में उसका जो टीचर है वो अच्छे संस्कार पैदा करे, कॉलेज में उनके प्रोफेसर जो अच्छा संस्कार करे। जब उनमें अच्छे संस्कार पैदा हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा जो पथभ्रष्ट हो जाएगा और नशों में ग्रस्त हो जाएगा। और अगर ये तीनों ही लोग, माँ, अध्यापक और प्रोफेसर, ये तीनों बच्चे में अपनी सोच अच्छी पैदा करें, अपने विचार अच्छे पैदा करें, अच्छे संस्कार पैदा करें, मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत में कहीं भी बच्चे जो हैं वो अलग सी सोच रखेंगे। दूसरा नेशनैलिटी की बात की, मैं राष्ट्रीयता की भावना भी के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। आज हमारे देश में जो हमारे टीचर हैं, मैं आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ, हमारे जो टीचर हैं वो हमारे बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? वो हमारे बच्चों को केवल 33%, 100 नंबर का पेपर है, 33% से उसने पास हो जाना है, बस उसे रट्टा लगाते हैं। टीचर के पास भी कुछ देने के लिए नहीं है। अगर टीचर के पास कुछ देने के लिए हो तभी वो हमारे बच्चों को संस्कार देंगे ना। वो तो हमारे बच्चों को संस्कार देते नहीं। मैं जहाँ पढ़ा हूँ, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, मेरे लिए वो पूजनीय स्थान है,
वहाँ हमारे टीचर बच्चों के सामने सिगरेट पिया करते थे और मैंने उसका विरोध किया। मैंने कहा ये गलत है, और उसका इतना अच्छा असर गया कि जिन बच्चों को कभी लाइब्रेरी नसीब नहीं होती थी, स्कूल को वहाँ लाइब्रेरी बनानी पड़ गई। जो टीचर कॉरिडोर में सिगरेट लेके क्लास तक में अंदर आ जाते थे बच्चों के सामने, वो उनमें ये लगा कि भाई आज का जो नौजवान, आज का जो स्टूडेंट है, ये लाइक नहीं करता इन बातों को। हमारे जो टीचर साहबान हैं उनको इतनी तनख्वाह मिलती है, लेकिन बस उनकी भी बस यही सोच है कि अपना पीरियड लगाओ, गल खत्म। मतलब सर आपके कहने का मतलब ये है, जो नशे का बीज है वो बचपन से ही बोया जाता है, वो बच्चा अगर देखता है, जो सीखता है, उसी इस पे बड़ा होता है। पर सर इसमें सरकार का कितना अहम रोल है? सरकार तो काम यही कर सकती है कि नशा छुड़ाओ जो केंद्र है वो वहाँ वो बना सकती है। संस्कार तो माँ ने पैदा करने हैं, संस्कार जो है वो टीचर ने पैदा करने हैं। सरकार अपना काम करती है। अब भी पंजाब में ही ला लो, जितने भी हमारे नशा जिन बच्चों को लग चुका है उनको नशा केंद्रों में पहुंचा दिया। वहाँ से कुछ समय के लिए वो ठीक भी होते, बाद में फिर आदी हो जाते। तो ये सरकार ने तो बस यही है कि केंद्रीय बना सकती है। सरकार के अलावा जो हमारी NGO है, जो हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो धार्मिक है चाहे वो सामाजिक है, मैं उनसे जरूर निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं उनसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि आप अपने जीवन का कुछ हिस्सा समाज को समर्पित करें। केवल ये बातें ना करें, प्रैक्टिकली काम करें। हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का आपने नाम सुना होगा, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मुझसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में राष्ट्रीय मुख्य संचालक का पद होता है। हमारे भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे भारत में हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। और हमारा कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता पदाधिकारी नहीं, आम कार्यकर्ता भी हमारा वो नशा नहीं करता। हमने संस्कार दिए ना, हमने संस्कार दे के उस समाज को, जिस समाज के बारे में एक मानसिकता थी कि यार ये जो समाज है ना ये तो नशाग्रस्त है, तो आज उल्ट हो गया। हमने 40 साल जीवन के लगाए, हमारे तमाम महापुरुषों ने लगाए, हमारे पदाधिकारियों ने लगाए, हमारे कार्यकर्ताओं ने लगाए। आज समाज का एक अक्ष, जो बिगड़ा हुआ अक्ष था, उसे में संवारने में हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने जीवन लगाया, तो आज वो अक्ष बदल गया। तो मैं इसी तरह दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनसे भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने परिवार को ही समझा लें। आज परिवारों का ये देखो क्या हाल है, बाप जो है, पिता जो है, वो आप रात को 3-3 बजे आता है, माँ भी बाहर रहती है, तो वे बच्चों ने तो फिर गलत दिशा में जाना ही। एक मैं और भी बात आपके माध्यम से समाज में पहुंचाना चाहता हूं। जो परिवार, माता और पिता, वो बच्चों को जो हॉस्टल में भेजते हैं, ये सबसे भयानक काम ये हो रहा है। जिस बच्चे को ये दिमाग में बैठ गया कि मेरी तो माता ने अब मुझे पूछना ही नहीं, मैं तो हॉस्टल में हूँ, मेरे पिता ने मुझे पूछना नहीं, मैं तो हॉस्टल में हूँ, तो वो तो बच्चा पथभ्रष्ट होगा ही, क्योंकि उससे पूछने वाला ही कोई नहीं है। टीचर प्राइवेट वो पढ़ाएंगे, उसके बाद बच्चे को अब वो कहाँ जाता है। वॉचमैन, आप समझते ही हो, वॉचमैन को कितना का वॉचमैन बेचारा उनको रोक पाएगा। तो ये संस्कृति जो है ना, ये संस्कृति पे भी कभी ना कभी इस देश के लोगों को चर्चा करनी चाहिए कि संस्कृति में कहाँ बेसिक गिरावट आ गई है, और जो गिरावट है उस गिरावट को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए समय समय पर इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप एक अच्छे विषय पे मेरे साथ वार्तालाप कर रहे हो, और मैं आपका हार्दिक धन्यवाद भी करना चाहूँ। और आपके माध्यम से इस देश के जितने भी धार्मिक मुखी, जितने भी अध्यापकगण, जितने हमारे प्रोफेसर हैं, जितनी हमारी NGO हैं, जितने हमारे संत महापुरुष हैं, मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस देश की जो बढ़िया संस्कृति है, अच्छी संस्कृति है, वो बच्चों में लेके आएँ। जो गलत संस्कृतियाँ आज इस देश में पैदा हो गई हैं, जैसे मान लीजिए अब कितनी गलत संस्कृति इस देश में पैदा हो गई कि वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। अरे ये कहाँ की संस्कृति है? हमारी ये संस्कृति तो कभी हुई नहीं। हमारी तो ये संस्कृति कि अगर पिता ने ये कह दिया कि बेटा मेरी मजबूरी है, आप 14 साल वनवास काट के आओ, तो श्री राम जी वनवास काटने के लिए चले गए। हमारी ये संस्कृति है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी धर्म पत्नी ने कहा था, उसने मैंने थोड़ा कहा, आपने वर दिए, आप अपना काम करो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरे पिता ने मुझे कह दिया, मैं तो जाऊंगा।
ऐसी संस्कृति, एक भाई, उसको थोड़ा कहा था भाई साथ जा रहा, धर्म पत्नी साथ जा रही है, ऐसे संस्कार थे हमारी संस्कृति में। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज भगवान जितने वृद्ध हैं उनकी हालत जाके देखो, वो कैसे तरस रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए, अपनी पोतियों के लिए, उनको मिलने नहीं दिया जाता। तो ये संस्कृति पे भी कभी बैठ के चर्चा हो कि जितने देश में वृद्ध आश्रम है, सबसे पहले तो मैं उसका आलोचक हूँ कि ये संस्कृति होनी ही नहीं चाहिए। अरे एक बाप एक माँ 3-4 परिवार के बच्चों को पढ़ाती है, लिखाती है, उनको जन्म देती है, उन्हें योग्य बनाती है, उनको कारोबारी बनाती है, और उसके बाद जब वो बेचारे ओल्ड हो जाते हैं उनको आश्रम में भेज दिया जाता है। ये संस्कृति जो है ना, इस पर कटाक्ष हो रहा है, इस पे बात होनी चाहिए। और भी गिरावट वाली जो बातें बन चुकी इस देश में, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, गुजरात है, अब गुजरात में नशे पर उन्होंने बैन लगा दिया, तो क्या वो स्टेट चल नहीं पा रहा? वहाँ शराब नहीं, बिहार में भी कुछ प्रयास हुए, ठीक है, तो फिर पंजाब में क्यों नहीं हो सकते? यहाँ रेवेन्यू का, अरे और सोच तो तुम पैदा करो। अगर तुम आने वाले बच्चों को मतलब बचाना चाहते हो तो फिर इस पर बैठ के कोई और विकल्प ढूंढो। मतलब ये बहुत सारी बातें हैं, इस पे समाज को भी तैयार होना चाहिए और लोगों को भी आकर्षित होना चाहिए, लोग भी अपनी भावना को रखें। ख़ास तौर पे अभी इलेक्शन ईयर आने वाला चलने स्टार्ट हो गया, वहाँ जितनी एनजीओ हैं उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों से वो पूछें कि इस पे आप बताओ जी, अगर आपकी सरकार बनती है तो आप इस पे क्या बात करोगे, आपका चुनाव मैनिफेस्टो में क्या होगा भविष्य के लिए, हमारे जो बच्चे हैं उनके उसका जीवन संवारने के लिए आप अपने चुनाव मैनिफेस्टो में कौन सी नई चीज़ लेके आ रहे हो। तो ये तो जो एनजीओज़ हैं, ये जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे हमारे प्रवक्ता हैं, उन लोगों को उनको पूछना चाहिए। और मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि मैं खुद इसका स्वागत करूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में बच्चे पढ़ते, अगर वो सवाल जवाब करें तो कम से कम जो पॉलिटिकल पार्टी के मुखी हैं उनको ये तो समझ आनी शुरू हो जाएगी कि अब आज का जो बच्चा है वो अब ये केवल बातें नहीं, प्रैक्टिकल भी कुछ करना चाहता है, प्रैक्टिकल भी वो आपसे कोई उम्मीद लगाए बैठा है। सर स्वागत है आपका। थैंक यू जी। सर आज हम बात कर रहे हैं नशे के ऊपर कि जो पंजाब में दिन पर दिन नशे की लत है युवाओं में वो बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखो, नो डाउट बॉर्डर स्टेट है, क्योंकि इंटरनेशनली अब कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि सारी दुनिया एक छोटी मार्केट की तरह बन गई है। सो कहीं ना कहीं प्रचलन जो है वो पिछले समय से इतना ज़्यादा बढ़ा है, उसको कंट्रोल करने की लगातार कोशिश हो रही है कि सिंथेटिक ड्रग्स हैं जो वो इतनी डैमेजिंग होती हैं कि देखो इसमें भी ना आप यू हैव टू क्लैरिफाई कि कौन कौन से आप कैटेगरीज में चाहते हो। एक तो होता है कुछ लोग शराब को भी नशा बोलते हैं, बट दैट इज़ क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्स भी है, रूटीन भी है। फिर एक आ जाता है कि ओपीएम और पॉपी हस्क है, वो ट्रेडिशनली जैसे पंजाब में या रूरल बैकग्राउंड्स में यूज़ होती थी, उसको एनडीपीएस एक्ट के नीचे ले आए, लेकिन राजस्थान में वो एनडीपीएस एक्ट में नहीं है। थर्ड आ जाता है जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, जैसे स्मैक, हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये चीज़ें आ गई। तो जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ लोग जो बैड एलिमेंट्स हैं वो प्रॉफिट की वजह से लोगों को इसके यूज टू या यंगस्टर्स में प्रचलन इसका करवाते हैं। तो लेकिन बट इनका अब जैसे जब कोई चीज़ नहीं होती है ना, तो मार्केट में सबका एक क्रेज़ होता है उसको देखने का। लेकिन बाय एंड लार्ज मैं अगर देखूं तो हम लोग यंगर लॉट में रहते हैं, कहीं ना कहीं लोगों ने ये समझ लिया है कि ये सिंथेटिक ड्रग्स बहुत डैमेजिंग हैं और इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बियॉन्ड कंट्रोल हैं। सो लोगों में एक सेंटीमेंट चल रहा है इसको कंट्रोल करने का, कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस भी है, डी एडिक्शन भी है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो आती है यंगस्टर्स को, कईयों को ऐसे लगता है कि हम इससे बाहर नहीं आ सकते। तो वो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब इतनी मेडिसिन्स आ चुकी हैं कि कोई अगर हेविली भी ड्रग्स पे डिपेंडेंट हो गया है तो ये नहीं है कि ज़रूरी उसको कहीं ना कहीं सेंटर में भर्ती करवाएंगे तो वहाँ उसको बांधेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, मारेंगे, ये नहीं। आप अगर विल पावर किसी ने जनरेट कर ली, फैमिली ने या दोस्तों ने मदद करके, आप किसी इंसान जो ड्रग्स में हाईली भी है इन्वॉल्व, अगर उसकी विल पावर जनरेट करा लेते हो तो वो बड़े आराम से मेडिसिन के साथ, मेडिसिन की हेल्प के साथ
थोड़ी देर में ही छोड़ के नॉर्मल रूटीन पे आ सकता है। हाँ, लेकिन उसमें विल पावर इज़ द मोस्ट थिंग। सो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से, आपने एक अच्छा इशू टच किया है कि लोगों को अपील भी करना चाहूँगा कि जो यंगस्टर्स छुपाते हैं या कहीं ना कहीं बताने से डरते हैं, इससे डरना का ज़रूरत नहीं है। कहीं पेरेंट्स को भी पता लगता है तो इसको छुपाने की जगह इसके हल की तरफ जाना चाहिए। और अब इसके सारे हल पॉसिबल हैं। मेडिकली आप इस चीज़ से बड़े आराम से निकल सकते हो, बस अगर आपने मन बना लिया। सो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे, दोस्त, साथी का आप उसको मेंटली इस चीज़ में स्ट्रॉन्ग करो कि आपने इस चीज़ को छोड़ना है। तो जिस दिन आप उस चीज़ में कामयाब हो गए तो बाकी तो डॉक्टर्स टेक केयर ऑफ इट। सर, सरकार का कितना अहम रोल है ड्रग्स छुड़वाने में या नशा छुड़वाने में? देखो, गवर्नमेंट अपील कर सकती है, गवर्नमेंट हल दे सकती है, गवर्नमेंट ड्रग्स को पकड़ सकती है, लेकिन जब तक एक सोशल अवेयरनेस नहीं होती, जब तक लोगों के खुद इस चीज़ को लेके एक थॉट प्रोसेस नहीं आता कि इसको छोड़ना है, तब तक मेरा मानना है कि इस चीज़ को कंट्रोल करना हमेशा मुश्किल होगा। क्योंकि पहले होता था कि पॉपी हस्क वगैरह वो बोरियों में आ रही है तो दिखता था। अब तो जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, इट इज़ 1 ग्राम 2 ग्राम, ठीक है ना। तो वो तो अगर 1 ग्राम किसी ने प्लास्टिक में लपेट के पॉकेट में डाला है तो आपको पता भी नहीं लगेगा। सो जब तक आप अपने बच्चे, दोस्त, फैमिली की आप लुक आफ्टर नहीं करते और एक सोशल अवेयरनेस नहीं आती कि ये सोशल स्टिग्मा नहीं है, ये कोई किसी को भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, किसी की फैमिली में भी ये चीज़ आ सकती है। सो इससे डर के इसको छुपाने की जगह इसके हल की तरफ जाना चाहिए और वो हल अब पॉसिबल है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें अगर जब तक सोशल अवेयरनेस नहीं होती तब तक इसको 100% कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हमेशा होगा। मगर सर, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार है, उन्होंने मतलब जब अपने मैनिफेस्टो में लिखा था वो पंजाब को नशा मुक्त करवाएंगे, गुटका साहिब को उन्होंने हाथ में लेके बोला था मैं 4 हफ्तों में पंजाब को नशा मुक्त करवा दूंगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, जो महाराजा साहब ने बोला था, गवर्नमेंट के एंड पे होता है कि ड्रग्स की सख्ती हो, ड्रग्स में किसी भी पॉलिटिकल बंदे की इन्वॉल्वमेंट ना हो, कोई ऑफिसर, कोई पॉलिटिकल आदमी कोई ड्रग्स बेचने वाले को शेल्टर ना करे। वो हो रहा है। ड्रग्स है जो बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कर दिया जहाँ से पकड़ा जाता है वहाँ की पुलिस ऑफिसर जिम्मेवार होंगे, उनके खिलाफ एक्शन होगा। वो भी बड़ा स्ट्रांगली कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बहुत छोटी क्वांटिटी में चोरी छिपे जो चलता है, उसमें जो कुछ परसेंट वो रह गया है, उसमें सोशल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट्स पार्ट, लेकिन अकेले गवर्नमेंट का पार्ट, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि सिर्फ गवर्नमेंट का पार्ट सफिशिएंट नहीं है, इसमें हम लोगों को भी एफर्ट करना चाहिए। सर, कोई एक छोटा सा मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि एक रिक्वेस्ट है कि आप सबको इसे सोशल स्टिग्मा ना समझें। कहीं भी आपको पता लगता है कि कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व है, अगर आपको लगता है कि कोई बेच रहा है, आप अपने पास के पुलिस स्टेशन या किसी भी पॉलिटिकल आदमी को इन्फॉर्म करें ताकि उसे रोका जा सके। और अगर आपको आपकी फैमिली, दोस्त या कोई और कहीं आपको लगता है कि ऐसे में इन्वॉल्व है तो उससे बात करें। जब आप उससे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जब वो दिल खोलेगा, आपके पास मानेगा कि ये है। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है, जो सिंथेटिक ड्रग्स लेने लगते हैं ना, फिर वो बहुत झूठ बोलने लग जाते हैं। वो कस्में खा के झूठ बोलते हैं, वो मानते नहीं हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसे होता है कि एक सोशल स्टिग्मा बहुत है, सब इसे आउट क्लास मानने लग जाएंगे। लेकिन हाँ, आपको एहसास कराना पड़ेगा कि यू आर पार्ट ऑफ अस, हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको मदद करेंगे कि आप ड्रग्स के इस चक्रव्यूह से बाहर आ सकें। आज का हमारा विषय था नशे के ऊपर। हमने लोगों से उनकी राय ली कि क्यों नशे का सेवन बढ़ता जा रहा है। किसी ने परिवार के संस्कारों को इसका कारण बताया, तो किसी ने सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा आपकी राय प्रोग्राम। अगर आपके पास भी कोई ऐसा विषय है जिस पर आप लोगों की राय जानना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेंद्र।